Okay, so let me start today's session. Welcome to GATE Solution Academy. Today we are discussing importance of GATE in higher education and PSU, that is specifically for EE branch, electrical branch. Myself, Professor Hitesh. I have more than 15 years of teaching experience. I am Director GATE Solution Academy. So, first of all, let me start with what is GATE. Okay, so GATE is nothing but Graduate Aptitude Test in Engineering, GAT, that is Graduate Aptitude Test in Engineering. Okay, it is an all India examination. It is equivalent to IIT JEE exam. With the help of IIT JEE, after 12th we can enter into IIT, and after engineering you can enter into IIT with the help of this exam. Okay, so IISc Bangalore and other 7 IITs on behalf of National Coordinating Board conducts this exam under the MHRD, Ministry of Human Resource and Development. Okay, so Department of Education, MHRD. Yes. So in GATE examinations, candidate can apply for 2. This added in GATE 21 or 23 papers like electrical, electronics, mechanical, computer science, etc. So now student can give exam in electrical, in instrumentation also, in electrical, electronics also, in electronics, in computer science also. Okay, so they can give exams in different stream also. Okay, so now the question is, why GATE? We have seen what is GATE. Now let me see why GATE. Okay, so I always named it not GATE, it is Golden Gate. Okay, this is not the GAT, this is GATE. We can say door, but golden door, because after this life is totally different for an engineer. Okay, so why GATE means why we need to give this exam. Okay, so this is very important exam for an engineer, because with the help of this we can enter into IIT, NIT, IIIT and all premier institutes which we wanted to join at the time of after our 12th, and because of some reason or because of more competition we are not able to. So now for higher education, definitely we can join this, and as per policy of Government of India, new education policy, they want maximum people to join this. Okay, so they want maximum student to join IITs for higher education. Okay, so definitely they are providing more fund. They are working on this also. So government is also promoting higher education. Okay, so GATE exam is important to get into MTech for IIT. At the same time, you can get admission in some foreign university also, like NSU, National University of Singapore. So in that also, with the help of GATE examination, you can enter into NSU also. Okay, so with the help of GATE examination, you can enter into PSUs. Okay, so what does it mean? See, when I was in BHU, Coal India Limited, CIL, used to come in our mining department, and they used to take entire branch, entire batch. Okay, like 30 to 40 people all are placed in Coal India Limited, all with the 18 lakh package. Starting from 18 lakh. Okay, but now Maharashtra court has given the order that all PSU must recruit only with the help of PSUs, only with the help of GATE examination. Okay, so enter into PSU. You have to give GATE examination. After the GATE examination, you can appear for the interview, and if you are selected, you can get into PSU. And definitely PSU is the means, I can say, in India, it is most reputed jobs, one of the most reputed jobs. If you will see office of IOCL, when you will go for interview, I have given the interview, so I have selected also. So in IOCL, this is the means, you will see the you can see the difference of offices what you are seeing in your college and any other institutes. Okay, so there is a difference definitely. So IOCL, NTPC, BHEL, PGCL, Power Grid Corporation of India Limited, that is means we can say best job for an electrical engineer. Okay, ECIL, that is Electronic Corporation of India Limited, that is in Hyderabad. Okay, like DRDO. So if you want to join DRDO, then also you have to give GATE examination. Okay, BRC also. So okay, so if you want to be teaching
if you want to be in teaching field like professor, assistant professor at IIT, NIT, or any reputed education institute, you have to give GATE examination. Okay, it is also junior and research fellow. Some posts are there under the professors of these IITs and scientists of DRDO, ISRO, like this. So there are posts. CSIR is also very good. This research organization. So this is also very good, and TIFR is also very good organization. They all required GATE examination. Okay, so career in research and development, definitely for R&D you required GATE examination. Okay, but main thing is technical value addition. Okay, if you know, you can appear, crack any interview. I have so many students who are working in Geo. Okay, so they have prepared for the GATE and they got some good rank, but they joined, they wanted to join job. Some people joined NIT, IIT, triple IT, and some wanted to join job. So most of them are working in L&T, in this Lodha में जो भी electrical का system पूरा, they are working on that. And this one also, है ना, L&T and Geo also. So there are so many students who has good in technical and they cracked the interview. Yes, one student also selected an IBM, है ना. So for that they have to appear technical interview, technical exam. So with the help of GATE examination, we can be excel in technical also. Yes. So next is GATE eligibility. From the GATE 21, third year students in 2010, 2012, that time also third year student can give exam only for 2 to 3 years. That was only blockage for third year students. Otherwise, now again third year students can give the examination. So this is the golden opportunity. Give GATE examination in third year, get good rank, and secure your final year, like you are placed in somewhere. So it is quite good. GATE scorecard will be valid for 2 to 3 years. So in the final year, if you will clear the GATE with the good marks, final year you can enjoy. Okay, so like I was a sponsored candidate in IIT. So during my this working in or MTech in IIT, that time I was fully sponsored, so I was free from any burden. I have not set in any this placements for that. So that was the most beautiful thing you can feel in your college life. Okay, so you can secure your final year in this year. You have 6 months, you can get the good rank and you can secure your future from this time only. Okay, so third year and final year student can give the examination. These are for the MCA, BCA, and this for these students. Okay, so third year and final year engineering student can give the GATE examination. Okay, so the next is GATE exam pattern. Okay, so the number of questions are 65. Okay, there are total 65 questions of 100 marks. Okay, and it is 3 hours, so we can say 180 minutes and 65 questions. That is around 2.5 to 3 minutes for one question. Okay, so we have to be fast, we have to be accurate, because positive mark plus if it is 2 mark, or plus 1 mark if it is 1 mark. For negative marking, it will be -2/3 or -1/3. Okay, so negative only for objective question, not for NAT, that is numerical answer type. So like fill in the blanks, we can say numerical answer type is like fill in the blanks. You have to enter the value. So like 0, 1, 1.2, 1.3, whatever you are getting answer. So negative marking is not there in NAT. So that is also good thing for of NAT. But with the option you can get some feel, yes, it can be the correct answer, but in numerical answer type, that this advantage you won't get. Okay, so next is total marks 100, total question 65. It is divided like that: 1 to 10 general aptitude question of 1 mark and 2 mark. So it is total 5 question into 1 mark, 5 question into 2 mark, so total is 50. Okay, next is technical plus engineering mathematics. So from 1 to 25, it is 25 questions, 1 mark, 25 marks. 26 to 55, 30 question, 2 mark, 60 marks. Okay, so yes, so we have to focus 2 marks question more, है ना? Yes, virtual calculator is allowed in the GATE examination, and in our app
where you are giving the this test, so there also virtual calculator is available, so you can do practice. At the same time, you can download the from the Google app also, calculator for GATE. But in whenever you give our test on the app, you can use our calculator, that is virtual calculator. Okay, so that will also be good for practice. Okay, so this is total. Technical session 70 marks, general aptitude 15 marks, and engineering mathematics 15 marks. 15 marks we are covering. General aptitude we are starting from tomorrow. So tomorrow 7:30 we are studying general aptitude. So that I will cover, that I am covering, and technical session we will discuss in detail. Okay. So yes. So the next is subjects and mark distribution. Yes, very important. Yes, please see it. Okay, so the very important subject, I always say the most important subject of electrical is yes, Musharraf, in NAT they give some range, that depends. If answer is 0.2, they will give 0.8 to 0.22, that depends on them, that is not fixed. Okay, that depends. Okay, they give them. Okay, so now we will discuss that first subject is network theory, most important subject, most fundamental subject. Mastering this subject is very important. So I always give the maximum weightage to network theory. For this, Valkenburg, Amy Valkenburg is the god book. Okay, so network theory is around 12%. Okay, next is signal systems, that is around 8.5%. Then control system, let me discuss first control system. So it is, control system is 9%. Okay, so see, 12 plus 9 plus 9, how much? It is around 30%. So see, aptitude plus maths, how much? 30%. Okay, network plus control plus SS, how much? It is again 30%. So 60% is covered with only these 4 subjects. 1 2 3 4 5 subjects. Okay, so these 5 subjects can everybody can solve, I must say. Okay, so this is 60% marks is totally for, so that you can be in competition. Let me tell you, ये केवल आपको competition में खड़ा रखने के लिए is required. So mastering this subject is very important. Okay, so for aptitude, previous year question paper are more than enough, plus what we are discussing in class. For mathematics, okay, that we will discuss in detail, but aptitude plus mathematics 30%, network control signal 30%, so totally 60%. Now the remainder is electrical machines. Now let me I always club subjects, that's why I always discuss 3 subjects together, and then third is power mechanics. Okay, this done. Okay, so electrical machine, power system, power electronics. So this is electrical machines, then power systems, and then power electronics. But nowadays power electronics is increasing day by day. Let me say, every year portion of power electronics is increasing, and power electronics with electrical machines are coming more into exams. So this is around 9, this is around 9, this is around 8. Okay, so 8 plus 8 plus 9, 25%, these 3 subjects. Okay, these 3 will give 25%, and this 25% is rank maker subjects. This 25% is rank maker subject, जो इसको कर पाएगा वही रैंक ला पाएगा. एप्टीट्यूड, मैथ्स, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल सभी लोग करते हैं. देखिए आप टेस्ट में भी, क्लास में भी, हर कोई कर पाता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, हर कोई कर लेगा, है ना. जो थोड़ा पढ़ लेगा, जिसका लाप्लास अच्छा होगा, वो नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल तीनों बहुत अच्छे से कर लेगा, है ना. जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वो ठीक है, वो क्या है उसके अंदर, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल में क्या है, लाप्लास है, एंड नॉट दैट मच कंसेप्ट, है ना. कंसेप्ट है डेफिनेटली, लेकिन इतना नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, power systems, power electronics, and I always teach these 3 subjects all together. Like what? If I'll start transformer, मैं ट्रांसफॉर्मर के साथ में 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट करता हूँ, देन इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, देन आई स्टार्ट डीसी, उसके बाद में सिंक्रोनस.
और जैसे ही हम सिंक्रोनस को, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा जब हम सिंक्रोनस पढ़ेंगे, आई विल स्टार्ट पावर सिस्टम्स. Okay, we will discuss topics, and then that time we will discuss, but the point is we have to club these subjects. Like अब आप power electronics पढ़ रहे हैं, so power electronics में you are studying the chopper, so DC machines with this control is nowadays question are coming, plus power systems plus power electronics, that is HVDC. Okay, that is also coming, so many questions are coming. Okay, and electrical machine, synchronous generator is there. Now parallel operation of synchronous generator plus power system are coming in more and more. वो frequency वाला, that frequency droop characteristic we always see ना. अच्छा ठीक है, वो triangle हम बनाते हैं जो frequency range. Okay, so that is also question are coming. Okay, so the next is, okay, तो कितना हो गया, +25, तो total 85%. जो बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बहुत इजी है, analog digital definitely easy. Now EMT portion is increasing. Last year in GATE 20 EMT as much, so EMT को थोड़ा सा हमको वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, और EMT is the most fundamental subject, लेकिन इंडिया में means we are not giving the time, and also मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, faculties in college also don't know, so that is not the problem, because हम basic शुरू से ही we are more Indian is more in mathematics. So but this is different type of mathematics, EMT, but this is the most fundamental subjects. If I am pursuing PhD in EMT, so now I can say EMT is means I can say उसमें पूरा हवा टाइट हो जाता है. Yes, there is no issue there. Okay, so subjects and marks distribution of EEE we have seen. So now next is, let me discuss all subjects. Okay, first of all engineering mathematics, सी लीनियर अलजेब्रा, दैट इज पूरा मैट्रिक्स आता है उसके अंदर, है ना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिक वैल्यूज, ये सब है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. अब देखिए, आई ऑलवेज क्लब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद आवर टेक्निकल सब्जेक्ट्स. अगर आप मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, सो लाप्लास क्या इनवर्स निकालना सीख रहे हैं मैट्रिक्स का, सो मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो आप एस आई माइनस ए मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल पाएंगे. That is called state transition matrix. समझे? सो आप जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तब आप साथ में स्टेट स्पेस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम भी कर लिया करें. That is the method to study. I am telling you, this is the method of study. आप जब लीनियर अलजेब्रा करें तब आप स्टेट स्पेस भी कर लें. जब आप कैलकुलस पढ़े तो कैलकुलस का तो मैक्सिमम वी कैन से कि कैलकुलस जो है that is altogether different. So up to 4 year series, yes, this calculus is better to study from BS Grewal plus previous year question paper and whatever we are discussing in class. Okay, so मैं आपको ग्रेवाल तो मोस्टली पूरी करा ही चुका हूँ कैलकुलस की, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने सारे देख लिए हैं, वो तो हमने हर ब्रांच के देखे. सो डोंट कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ओनली योर ब्रांच. ओके, बिकॉज कैलकुलस इज टफ फॉर मैकेनिकल, सो आप मैकेनिकल के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, so that will be advantageous. डबल ई के भी करेंगे आप, अगर आप डबल ई के हैं तो ईसी के भी करो, आईएन के भी करो, मैकेनिकल के, मैथ्स के भी, जो भी कॉमन टॉपिक है सबके करें. ठीक, जब आप वेक्टर पढ़ें तब साथ में क्यों ना ईएमटी पढ़ लो, तो आपका ईएमटी भी हो गया और वेक्टर भी हो गया. सो इन मैथ्स के साथ में ईएमटी कंप्लीट हो गया. ओके, जब आपने लीनियर अलजेब्रा करा तो कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज आल्सो सिलेबस ऑफ नेटवर्क का भी एक सिलेबस है, दैट इज स्टेट इक्वेशंस, एंड एट द सेम टाइम ये सिग्नल सिस्टम का भी सिलेबस है. अंडरस्टूड? नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम देखा, इतने दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इन नेटवर्क एनालिसिस. तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, साथ में क्यों ना वो भी कंप्लीट कर लो. मींस नेटवर्क की जो हम ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, सो आपका इस तरीके से ही आपको कंबाइन करते हुए, इसलिए ऑलवेज कीप सिलेबस विद यू, राइट डाउन द कंप्लीट सिलेबस विद योर ओन हैंड राइटिंग, एंड ऑलवेज यूज डिफरेंट कलर पेन. देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने ये ग्रीन ब्लू करा है, रेड करा है, इट इज मोर अट्रैक्टिव. अगर ये पूरा एक कलर होता तो आपको मजा नहीं आता. थोड़ा सा एक जो मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान करा ना, तो स्वच्छ भारत जो है वो डेफिनेटली इट लुक गुड, किसने भी करा, इट डजंट मैटर. ओके,
So Swachh Bharat is important. We are cleaning it. Okay. So the next is complex variable. Okay. So whenever I complete complex variable रेसिड्यू थ्योरम, आपको Z ट्रांसफॉर्म भी करना चाहिए, isn't it? Z ट्रांसफॉर्म इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है रेसिड्यू थ्योरम का. Z ट्रांसफॉर्म we have completed ना. Then probability and statistics. Okay, this we are completing. So this topic is not correlated to your GATE examination syllabus, but otherwise एक power system में reliability topic होता है. If you will do MTech in power systems, that time that topic will come. Very nice topic. So I am MTech in power systems only. So the reliability का topic होता है and that is quite good. और उसके लिए हमको probability we have to be very good in that, क्योंकि only GATE examination भी नहीं है, आप बाद में इंटरव्यू भी है. So first let me complete the GATE syllabus. Okay, चलिए. न्यूमेरिकल मेथड्स very important with power flow analysis. तो जब आप न्यूमेरिकल मेथड करो, क्यों ना आप डायरेक्ट जेबी गुप्ता से ही करो. जेबी गुप्ता से न्यूमेरिकल मेथड करा, जो भी अपना ये न्यूटन राप्सन है और जॉर्डन मेथड है, इसको साथ में करा, साथ में लोड फ्लो भी कंप्लीट कर लिया, isn't it? So इस तरीके से you have to combine the syllabus. ओके, चलिए. ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूरा लाप्लास तो किसका है? पूरा लाप्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चन आप लाप्लास से कर लो. पूरा नेटवर्क जो अपन वो पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम में, टाइम रिस्पांस एनालिसिस, क्या बोलते हैं इसको, ये राइस टाइम, ये पीक टाइम, यस एमपी है ना, टीआर टीपी, सब कुछ क्या है? सब कुछ तो लाप्लास ही है. लाप्लास से तो निकलता है. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट. जेड ट्रांसफॉर्म मैथ में भी है. सिग्नल सिस्टम का पूरा बेस है प्लस जेड ट्रांसफॉर्म जो डिस्क्रीट वाला. फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपने देखा है कितना टफ था. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म वैसे मोस्टली ईसी वालों को कम्युनिकेशन में रहता है, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रिक्वायर्ड. ओके, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो यस, so the next is electrical circuit. Yes, so network analysis or electrical circuits. For this I have uploaded the complete book on our app. उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, उसका उसमें पूरा थ्योरी है. क्वेश्चन ऑल्सो आई एम गिविंग यू इन एज अ टेस्ट. सो उसको मैं टेस्ट में ही आपको दे रहा हूं ताकि आप खुद सॉल्व कर सकें, है ना. व्हाट और एन एक्स्ट्रा वी आर सॉल्विंग इन द क्लास. सो नेटवर्क एलिमेंट्स, आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, आरएलसी एलिमेंट्स, नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड, केसीएल केवीएल, नोड मेश एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम. यस, है ना. ये तो सब बेसिक था, हर कोई कर लेता है. नेटवर्क थ्योरम में आपको केवल ध्यान देना रहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में. सो जब आप थ्योरम्स लिखेंगे तो इसका एक समरी बनाते जाइए. देखिए आप क्या करिए, टेक अ ब्लैंक पेजेस, डोंट टेक नोटबुक, टेक ब्लैंक पेजेस. ठीक है, आपने 2 पेज ले लिए. ठीक है, 2 पेज में आपने यहाँ पर लिखा थ्योरम्स. ठीक है, थ्योरम्स में आपने पहले लिख दी थेवेनिन्स, फिर लिख दिया कैसे वीटीएच निकालते हैं, कैसे जेडटीएच निकालते हैं. ओके, देन अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा तो कैसे जेडटीएच निकालेंगे, कैसे वीटीएच निकालेंगे. लाइक शॉर्ट नोट्स. हो गया 2 पेज. इन दोनों को साथ में पंच कर दिया, स्टेपल कर दिया, इसको अलग रख दिया. सो आपका ये खत्म हो गया. इसके अंदर क्वेश्चन मत लिखिए, ओनली थ्योरी पार्ट लिखिए और कर दीजिए अलग. ओके, नाउ ट्रांजिएंट रिस्पांस वी हैव डन. क्वेश्चंस को अलग करो, जो हमने क्लास में देखा है उसको फिर से रिवाइज करो एंड उसको अलग नोटबुक, ये अलग 2 पेज में लिखो. ट्रांजिएंट का पूरा समरी. रेजोनेंस वी हैव कंप्लीटेड, रेजोनेंस को लो. 2 पोर्ट नेटवर्क का भी, तो 2 पोर्ट नेटवर्क का अलग से करो. 3 फेज सर्किट वी हैव सीन, तो 3 फेज सर्किट से अलग नोट बना लो. स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव कंप्लीटेड, उसके अलग नोट बना लो. कॉम्प्लेक्स पावर, एस पी क्यू, पावर फैक्टर कॉस फाई, ये सब. सो अगेन पावर, जैसे ही ये बात आती है ये वाले टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स पावर, पावर फैक्टर एंड एसी सर्किट, इमीडिएटली साथ में पावर सिस्टम का आपको एक टॉपिक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर करेक्शन. दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर करेक्शन. सो पावर फैक्टर करेक्शन और ये टॉपिक आप साथ में क्यों नहीं करोगे? सो पावर फैक्टर करेक्शन भी आपका अच्छे से हो जाएगा. दैट इज फ्रॉम, फॉर दैट जेबी गुप्ता इज मोर देन गुड. ओके, तो पावर फैक्टर करेक्शन के क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, साथ में आप ये क्वेश्चन साथ में करेंगे. सो आपका 2 टॉपिक साथ में हो गए. सो डोंट, आप पूरा सिलेबस को एक ही मानो, एक सिंगल एंटिटी मानो. डोंट से कि सर ये टॉपिक देन ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना है, टॉपिक वाइज जाना है. बिकॉज ऑल टॉपिक आर
correlated. Just we have to see different prospectus here and different वहां पर. जैसे अगर ये Vm sin omega t है, Vm sin omega t plus alpha. Okay, this is a switch suddenly given to RL circuit. Okay, so ये हम किस में पढ़ते हैं? ट्रांजिएंट में. We have seen है ना, इसका CF plus PI निकलेगा. That will be e raised to minus R upon LT plus हमने देखा था Vm upon R plus j omega L plus sin omega t plus alpha minus theta. So this is nothing but the question of transient, but that is the basis of symmetrical fault. This is transmission line, this is the generator, and when suddenly switch is closed, so क्या किस टाइप का करंट फ्लो होगा ना, सब ट्रांजिएंट करंट, स्टेडी स्टेट करंट. दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट. So why you won't study transient response in network and transient of this line of the power system all together? Understood? Okay, chaliye. So this is nothing but electrical circuit. Next topic is electromagnetic. I am telling you, nowadays its popularity or we can say the questions are increasing day by day. For this, see, अब देखिए, अभी जब हमने I have completed magnetic circuits already, isn't it? So magnetic circuit we have completed, self and mutual inductance of simple configuration, isn't it? So that is electromagnetic field, but we have covered in magnetic circuits of electrical machines, isn't it? So electrical magnetic circuit जो है, that is flux, MMF, that is also the basic of, after magnetic circuit we read transformer, isn't it? So आपका ये पोर्शन देखिए साथ में कर दिया, रिलेक्टेंस हमने साथ में कर दिया, MMF साथ में कर दिया, इंडक्टेंस आल्सो वी हैव डिराइव्ड. कैसे हमने करा था? साइज प्रोपोर्शनल टू I with the help of core. So this is the, I must say this is the advantage that I am taking all subjects. ये advantage होता है. If somebody will come and he will take different subjects, then वो link करना difficult होता है. Okay, so Biot-Savart law, Ampere's law, कर्ल, Faraday's law. ओके, चलिए देखिए अब बात करते हैं कर्ल की. सो ऑपरेटर इज डेल, सो वन इज डेल डॉट बी, अनदर इज डेल क्रॉस एच, ओके, डेल डॉट डी एंड डेल क्रॉस ई. ओके, दिस फोर आर मैक्सवेल इक्वेशंस. सो कर्ल क्या हो गया? डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस एच. तो ये कर्ल कंप्लीट हो गया. मैथमेटिक्स में कर्ल ये देखा, उसको कोरिलेट कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, isn't it? So this is nothing but the syllabus of electromagnetic field for this best. अभी कॉलेज में यही पढ़ा रहा है, EMT पढ़ा ना, बहुत बढ़िया है. तो फिर बहुत अच्छा है सर, लेकिन वो सिर्फ PDF पढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, मतलब समझा भी नहीं रहे डेल क्रॉस ई जीरो कैसे हो गया. ओके, यस. सो डेफिनेटली वी विल गिव वेरी गुड दिस वन टाइम एंड फोकस ऑन दिस टॉपिक, है ना. सर वो पहला वाला जो इक्वेशन है डेल डॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल डॉट बी इक्वल टू 0? हम कह देते हैं कि जो इररोटेशनल होगा उसका ग्रेडियंट 0 होगा. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. ये n है, ये n पोल है, ये s पोल है. n से लाइंस निकली s पे गई, n से निकली s पे गई. इसको बोलते हैं सोलेनॉइडल फील्ड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइडल फील्ड. सो अगर आप कॉइल आपने बना दी ऐसी, दिस आर दी कॉइल, है ना. मान लो आप ऐसे कॉइल बनाते हो ना, ये कॉइल है, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ. सो यहाँ पर करंट अंदर गया, तो जो करंट अंदर गया उसको हम बनाते हैं क्रॉस से. सो जो फील्ड आया वो ऐसे आया, ऐसे आया. तो जो रिजल्टेंट फील्ड बना वो ऐसे बना. ओके, तो ये जो रिजल्टेंट फील्ड बना है ना, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लूंगा, ठीक है, यहां से जो जितना फील्ड गया उतना ही बाहर गया. सो दैट्स टाइम इट इज कॉल्ड डेल डॉट बी इक्वल टू 0. जितना इनपुट उतना आउटपुट. सो दिस इज नथिंग बट डेल डॉट बी इक्वल टू 0. और ये 0 कब नहीं होगा? जब इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया एन और एस को, और मुझे अगर सिंगल एन मिल गया, सिंगल एन मिल गया, तो उस टाइम पे मेरा डेल डॉट बी क्या होगा? डेल डॉट बी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन सिंगल एन मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. मोनोपोली हो गया. सो दिस इज द रीजन व्हाई डेल डॉट बी इज ऑलवेज 0. इट वोंट बी 0 अगर आप मोनोपोल ढूंढ लिए तो.
लेकिन मोनोपोल जिस दिन ढूंढ लिया उस दिन अर्थ का जो पूरा हम बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो जो बैलेंस है हाँ वही सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ तो हाँ मोनोपोल मिल गया तो हो जाएगा, इसीलिए ये जो डेल डॉट डी इक्वल टू ओवी है ये हमको पॉजिटिव मिलता है। डेल डॉट डी इसलिए इज डिफाइंड क्योंकि हाँ जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू से कैसी जाती है बाहर, हाँ और बात ये जो फील्ड है ये इरोटेशनल है, इसलिए इसका कर्ल 0 होता है। हाँ इसका कर्ल कब 0 होता है? जब देर इज ओनली स्टैटिक चार्ज। रोटेटिंग चार्ज लेकिन में डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी हो जाएगा अगर हमने एसी कॉइल बना ली ये वाली। इस कॉइल के कारण हमारा क्या हो गया, डेल ये भी आ गया, माइनस डेल वी बाय डेल टी भी आ गया। ओके, जब हाँ when we will see that time we will see, है ना। चलिए ठीक है, हम्म, ओनली मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन टेक अराउंड 3 to 4 आवर, ऐसा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो डेल क्रॉस हाँ एच इक्वल टू जे प्लस डेल बाय डेल टी, केवल इस डेल डी बाय डेल टी के ऊपर हमारा पूरा मोबाइल चलता है। पूरा जो आज डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब व्हाट अ कॉन्सेप्ट। बाकी सब चीज तो मैक्सवेल हैज टेकन फ्रॉम द अदर्स, बट डेल डी बाय डेल टी इज हिज ओन कॉन्सेप्ट। एंड उसके वो देने के बाद भी हर्ट्ज ने उसके 10 साल बाद एक्सपेरिमेंट किया था एंड दे प्रूवन यस मैक्सवेल वाज करेक्ट। सो हर्ट्ज जो है वो ईटीएच स्विट्जरलैंड से पढ़े, कंप्लीटेड हिज दिस वन प्रोजेक्ट एंड दिस वन, तो ईटीएच स्विट्जरलैंड, है ना। चलिए ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस। Okay, so this is nothing but the EMT. Okay, so now the next is yes, so the next is signal system. Yes, I told you Fourier series. Ab now see, Fourier series is very important of maths. Okay, here it is required representation of continuous and discrete time periodic signals. Okay, so whenever you see Fourier series, that is in maths, plus signal system plus very people don't correlate it with power electronics. आप जब इन्वर्टर पढ़ते हैं, इन्वर्टर में स्क्वायर वेव आया तो इस स्क्वायर वेव का हम फोरियर सीरीज निकालते हैं। सो इफ इट इज Vm, this peak is 4 Vm upon pi sin omega t. So this is the fundamental of the square wave. So ये हमको समझना जरूरी है। अगर हम इन तीनों चीज को कोरिलेट कर पाए, so nobody can stop us. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा हार्मोनिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दी फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज मैथ्स का, फोरियर सीरीज सिग्नल सिस्टम में, एंड फोरियर सीरीज ही इन आवर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो दिस थ्री थिंग वी विल सी इन कोरिलेशन। सो रिप्रेजेंटेशन, सो व्हेनेवर आई टेक फोरियर सीरीज ना, लोग करते हैं जब मैथ्स में पढ़ते हैं उसको एक्सप्रेशन से पढ़ते हैं, बट वेन एवर आई टेक फोरियर सीरीज, आपने देखा होगा हमने सारे वेवफॉर्म का फोरियर सीरीज निकाला है। उस टाइम आपको नहीं समझा, लेकिन जब पावर हम करेंगे तब आप बोलोगे ये तो पूरा करा हुआ है। सो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स विल बी कंप्लीटेड इन फोरियर सीरीज व्हेन वी स्टडीड मैथमेटिक्स। सो हमने एक ही इक्वेशन का सी इस दिस स्क्वायर वेव को आप लिख सकते हो Vm when t 0 to t by 2 and it is minus Vm when t is t by 2 to t, isn't it? This is t by 2 and this is t, this is 0. तो आप जब इस एक्सप्रेशन को फोरियर सीरीज निकालोगे तो साथ में क्यों ना उसका एक्सप्रेशन बना के फोरियर सीरीज निकाल लो, तो आपका ये फुल वेव इन्वर्टर का फोरियर सीरीज एनालिसिस हो गया ना। सो दिस इज द मेथड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स टुगेदर। Okay, and this is advantages definitely. Okay, now application of Fourier transform as we have seen in this one in mathematics also. So this syllabus will also be covered. तो आप जब मैथमेटिक्स करें साथ में इसके क्वेश्चंस भी कर लें। ओके, एंड सिग्नल सिस्टम इज कॉमन फॉर इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड आईएन। सो डोंट सॉल्व ओनली डबल ई क्वेश्चन, सॉल्व the IN question also and EC question also at the same time, EAC previous year questions. I always prefer engineering service exam के previous year के question paper भी आप करिए क्योंकि वो बहुत important होता है। Okay, next is electrical machines. Yes, most fundamental topic, दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत ही easy syllabus है। अगर अच्छे समझा जाए तो स्टार्ट किया जाए मैग्नेटिक सर्किट से, मैग्नेटिक सर्किट से स्टार्ट किया जाए, मैग्नेटिक सर्किट से स्टार्ट करो, सीरीज पैरेलल सर्किट कंप्लीट करो, ट्रांसफार्मर को दो, ट्रांसफार्मर कंप्लीट करो,
उसके बाद में इमीडिएटली जंप टू 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेम। जो आपने जितनी मेहनत करोगे ट्रांसफॉर्मर में, पूरी मेहनत इंडक्शन मोटर के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिस दिन आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैंने क्लास में कराई थी, उसी टाइम पे हमने बेस रख दिया था 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन का। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब इसको करेंगे आप समझ जाओगे कि हमने जब नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करा है और जो उसमें क्वेश्चन कराए हैं वो उससे आपके इंडक्शन मोटर के मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट हम बस हमको बनाना है, उसके बाद में पूरा नेटवर्क है। ओके, उसमें शायद सर रोटर रेजिस्टेंस आता होगा। रोटर रेजिस्टेंस आ जाएगा, यस। तो वो रिफर टू प्राइमरी लेंगे, सो इट विल बी R1 X1, इट विल बी XM, इट विल बी R2 एंड इट विल बी X2। ओके, सो जब उसको यहां पर लेते हैं तो ये R2 X2 और ये हो जाता है R2 इंटू 1/S-1। बस यही सर्किट चेंज होता है। तो मैक्सिमम पावर के लिए ये बनाएंगे और मैक्सिमम टॉर्क के लिए इसको केवल R2/AC रखते हैं। ओके, दैट डिफरेंस वी विल सी। एक छोटा डिफरेंस है, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड एंड मैक्सिमम टॉर्क डेवलप में, है ना। दैट इज वेरी, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। और मुझे भी मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ये चीज क्वेश्चन पूछा था, तो फिर वी कैन ये हम इतना अच्छे से कर पाए, है ना। ही गॉट कुछ अराउंड 600 रैंक। his name was, I guess he's from Sardar Patel College, I forget his name. So he has told me that one, he has discussed that particular with me. So half an hour ka discussion hua tha, then we have concluded on this. Yes, so maximum power and maximum torque are two different expression will be required, only some changes in circuit will be required. Okay, so now next is synchronous machine. तो जब synchronous machine करेंगे आपको नहीं पता चलेगा that we have created complete base of power system. Okay, so like this is EG, or we can say EF angle del. This is R and XS. RA is armature resistance, XS is synchronous impedance, and this is terminal voltage VT angle 0, and this is IA. So this is nothing but the complete power angle equation, or we can say power flow diagram. पावर फ्लो जो रहेगा पावर सिस्टम का पूरा केवल इस सर्किट पे बेस्ड है। तो ये EF एंगल डेल को हमको कोरिलेट करना पड़ेगा किससे? सिंक्रोनस मशीन से। व्हाट इज दिस? दिस इज टॉर्क एंगल, पावर एंगल। सो इस डेल को सर्किट में और इस मैकेनिकल सिंक्रोनस मशीन में, इसमें हमने कोरिलेट कर लिया। हम हमारा पावर सिस्टम्स का मैक्सिमम पोर्शन और सिंक्रोनस मशीन साथ में हो जाएगा। ओके, सी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। So Drude characteristic also very much important. Losses and efficiency calculations, yes, of electrical machine, that is very much important. जो हम efficiency और ये सब चीज देखेंगे। Okay, then it is DC machine, definitely very much important, है ना। तो DC मशीन को हम ऐसे टाइम पे लेते हैं कि DC मशीन और साथ में इमीडिएटली हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करते हैं, क्योंकि ड्राइव्स का पोर्शन नाउअडेज कमिंग इन दी एग्जामिनेशन। ओके, सो then auto transformer, parallel operation transformer, this is okay, this is not tough thing, है ना। 3 फेज, अब देखिए 3 फेज कनेक्शन का सभी को मैक्सिमम प्रॉब्लम रहता है। एंड जब हमने, आपको याद है अभी हमने थोड़े दिन पहले 3 फेज सर्किट देखा था, तो 3 फेज सर्किट में मैंने डायग्राम बनवाया था ना कि डेल्टा कैसे बनता है, तो हमने इसे जोड़ा था, isn't it? यही तो है। जैसे ये आपने समझ चुके हो ना वहां पर, अब मैं जब इसको यहाँ पर अप्लाई करूंगा ना, यू विल विद इन मिनट यू विल अंडरस्टैंड वेक्टर ग्रुप्स, YD1 YD6, ये सब आप बिल्कुल इमीडिएटली समझ जाओगे जब हम वो स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेन जो कनेक्शन है वो नेटवर्क में ही देख चुके हो, स्टार डेल्टा कनेक्शन में, है ना। सो ऐसे आपका इस तरीके से पूरा बेस बन रहा है, पूरे टॉपिक का बेस बन रहा है। तो नाउ जितना मजबूत नींव होगा उतना बड़ा उसके ऊपर बिल्डिंग रहेगी। ओके, चलिए, सो दिस इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। नेक्स्ट इज पावर सिस्टम्स। आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक, सो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इक्वल एरिया क्राइटेरियन इज टोटली बेस्ड ऑन दी, जो हमने अभी बताया ना मैंने आपको, EF एंगल डेल, यही। तो डी स्क्वायर डेल पाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू PM माइनस PE, ये स्विंग इक्वेशन। ये डेल कौन सा डेल है? यही डेल है, ये तो समझना है। ये समझ के सब काम हो गए।
ये जो P है वो क्या है, यहाँ पर जो VT EF अपॉन एक्सेस साइन डेल आएगा, सो ये बन जाएगी डी स्क्वायर डेल और साइन डेल। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसका सॉल्यूशन किसके और बेस्ड रहेगा, न्यूमेरिकल मेथड्स पे। तो वो जो न्यूमेरिकल मेथड में मैथ्स में जो है उसको क्यों ना हम इसमें ही देखें, क्यों ना हम उसको न्यूमेरिकल मेथड को गॉस सीडल और न्यूटन ऑप्शन को पावर सिस्टम में ही देखें। सो मैथ्स का भी हो गया और साथ में पावर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। सो व्हाई टू स्टडी न्यूमेरिकल मेथड डिफरेंटली, इजंट इट। जब बस एडमिशन मैट्रिक्स देखा तो आपका टू पोर्ट नेटवर्क का वाई पैरामीटर भी तो कंप्लीट हो गया, उसका इनवर्स लेंगे तो जेड पैरामीटर हो गया। सो टू पोर्ट नेटवर्क आधा तो हमारा पावर सिस्टम में ही हो गया, और जब पावर सिस्टम में देख लिया तो आपका ये काम भी हो गया। अंडरस्टूड। नाउ मॉडल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें केवल 3 टाइप की लाइन हो गई, एक हो गई शॉर्ट लाइन, एक हो गई मीडियम लाइन, एक हो गई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट। जब शॉर्ट और मीडियम हो गया तो केवल आरएल हो गया। तो आरएल सर्किट तो हम देख चुके हैं नेटवर्क में, ये आप सभी समझ नहीं रहे। ये आपका में Z/2 Z/2 एंड ये Y, ये हम सर्किट किस में देख चुके हैं, टू पोर्ट में। यही बस ट्रांसमिशन लाइन को हमको बनाना है, उसका सॉल्यूशन तो हम देख चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। सो ये सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, लेकिन इसको पावर सिस्टम जो अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द थिंग्स इन मिनट्स। ओके, सो दिस इज द, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मैक्सिमम टाइम टू नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में मैं आपके सारे लगभग सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं। आई नो, तो मुझे मालूम है कि जब आपको मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको 2 मिनट लेगा समझाने में कि कैसे हमको को रिलेट करना है विद दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, देन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, आई टोल्ड यू पावर फैक्टर करेक्शन इज एस पी एंड cos phi एंड q, ये हम देख चुके हैं ना अच्छे से, किसमें, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, यही तो है पावर फैक्टर करेक्शन, और इसके हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं मोस्टली। नाउ सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ये भी आपको बताया मैंने, Vm sin ओमेगा t, स्विच क्लोज किया RL पे। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अब देखिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स में, उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ दिस इज पावर सिस्टम, दिस वन प्रोटेक्शन। सो दैट प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट बुक है, माय प्रोफेसर ही वाज देयर, DN विश्वकर्मा, BHU के प्रोफेसर हैं, उनकी बुक है, उससे ही मैं पढ़ाता हूँ, एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और उसी बुक में फॉल्ट भी है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पोर्शन DN विश्वकर्मा से, और उसके बाहर जाता भी नहीं है, वेरी नाइसली रिटन, तो वो पूरा हम कवर करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। इसके लिए JB गुप्ता नहीं प्रीफर करोगे तो बेटर रहेगा, उसके लिए हम वी विल कवर दी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन बुक। ओके, नाउ ये सिस्टम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये और ये एक ही बात है। नाउ इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इज अगेन इंट्रोड्यूस्ड, ये मेरे टाइम पे था, 2010 में था, लेकिन अभी कुछ सालों से हटा दिया था, लेकिन अगेन आ गया है। द भगवान बुक इज स्टीवेंसन। आप NPTEL के भी लेक्चर देखोगे ना तो ये बुक को ही प्रीफर करेंगे, मेरा लेक्चर देखोगे ना तो भी मैं ही इसको प्रेफर करूंगा। ये भगवान किताब है, बहुत ही पतली सी है, इसको समझना आम आदमी के लिए मेरे को समझने में 4 बार बुक पढ़ना पड़ी थी, तब जाके ये हिला था कि यस व्हाट ही इज टेलिंग, है ना। कोई समझ सकता है, बहुत अच्छी बात है, बट आई फील अगर अच्छे से समझना, वो जो समझना है वो बात अलग है, और जो अच्छे से एक एक चीज समझना, उसके पहले आई वॉज नॉट गुड इन पावर सिस्टम, बट बिकॉज ऑफ ओनली दिस बुक आई हैव कंप्लीटेड माई MTech इन पावर सिस्टम। आई कुड गेट IIT रुड़की में, IIT मद्रास में, सब जगह कुछ भी, बट दिस इज द मोस्ट वी कैन से मोस्ट बेटर बुक, मतलब इससे बेटर तो कुछ देखा ही नहीं है बुक मैंने अभी तक इस पावर सिस्टम से। एंड इसके सारे अनसॉल्व यू कैन सी इन गेट एग्जामिनेशन, आई हैव सीन द एग्जामिनेशन इन एग्जाम, माय एग्जाम, मुझे कम से कम 4 to 5 मार्क्स एक ये और इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए फिजराल्ड किंग्सले, इन दोनों बुक से 4 से 5 मार्क्स तो मुझे डायरेक्ट देख के टिक हो गए थे, लोग उसमें परेशान होते रहे और मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आया था, बिकॉज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक ओनली, स्टीवेंसन एंड फिजराल्ड किंग्सले, सो वी विल सॉल्व दैट, लेकिन बेस्ट बुक, यस। सो चलिए इसका, yes, so this is nothing but power system. The next is this is electrical measurement. So I feel
ओके, कंट्रोल सिस्टम, हाँ यस, नेक्स्ट इज कंट्रोल सिस्टम। सो द कंट्रोल सिस्टम में तो हम बता ही चुके हैं। देखो, केवल सिग्नल फ्लो ग्राफ, कितना इजी, केवल एसएफजी, मासंगियन फॉर्मूला एक, ब्लॉक डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इजी। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, फीडबैक प्रिंसिपल, सब कुछ लाप्लास है, ये पूरा पोर्शन लाप्लास, ठीक है। ट्रांसिएंट एंड स्टेडी एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम, ये पूरा लाप्लास, ठीक है। लाप्लास कर लिया तो ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया। दिस इज, ये दोनों टॉपिक 2 घंटे की भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। स्टेबिलिटी एनालिसिस, यस। आरएच राउथ ऑर्बिट्स एक्सट्रीमली इजी। नाइक्विस्ट टफ है, नाइक्विस्ट के इसलिए मैंने अच्छे खासे 6 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कुछ तो यूट्यूब पे भी है और कुछ अपने सारे बचे हुए ऐप पे हैं। बोडे प्लॉट्स, रूट लोकस, लीड लेग, इसके लिए पर्टिकुलर देखिए बुक चूज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लीड लेग कंपेंसेटर के लिए बीसी कुओ से अच्छा बुक आज तक नहीं देखा। देखिए पूरा कंट्रोल सिस्टम के लिए बुक अच्छा है वो, लेकिन आप पढ़ने जाओगे ना तो गेट के लिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो बीसी कुओ से हम लीड लेग कंपेंसेटर, ये इसका पूरा मेरा बहुत अच्छे नोट तैयार है। पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर के लिए अलग चीज से, स्टैटिस्टिकल मॉडल के लिए हमने बोला किसके साथ करेंगे, मैट्रिक्स के साथ में। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ एल्टायर सिस्टम डेफिनेटली। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्रिएशन ऑफ एनी जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म, ये कंट्रोल सिस्टम में क्यों है, ये तो बेसिक चीजें हम जो कंट्रोल में नेटवर्क में ही देखते हैं, है ना। जब वो स्टेडी स्टेट देखा था हमने, ओके चलिए। सो नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट पढ़ने के लिए आई मस्ट से, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, लेकिन कोई भी एक नॉर्मल पर्सन अगर 3 घंटे के हिसाब से 3 आवर्स 4 इंटू 4 दिन देते ना, ये सब्जेक्ट में कुछ नहीं बचा। और एक इसकी बुक आती है लियो, है ना, ये लियो या यस मिलीमेंस, एक और बुक है इसका, ठीक है चलेगा। वो तो जो हम नोट्स देंगे वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन लियो इज गुड बुक। लेकिन 3 आवर्स 4 लेक्चर्स कंप्लीट, पूरा सिलेबस, कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस मान लो 12 घंटे और, है ना, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 24 आवर्स भी बहुत ज्यादा हो गया सब्जेक्ट के लिए। एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी, ओके, कुछ भी नहीं सब्जेक्ट में। देखो पावर फैक्टर तो हम कर ही चुके हैं उसमें, है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा चेंज है उसके अंदर, है ना। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी, ओके, एवरीबडी कैन डू। इट इज स्कोरिंग ऑल्सो, 1 या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का आएगा, बट इफ यू वांट टू बी AIR1 देन हर कुछ परफेक्ट करना पड़ेगा, और हम इसके अलावा टारगेट तो कुछ रख ही नहीं सकते, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है। टारगेट ये रखो आए कुछ भी, लेकिन टारगेट तो AIR1 ही रखो, है ना। दंगल का डायलॉग याद है ना, सेकंड आओगे तो भूले जाओगे, फर्स्ट आओगे तो मिसाल बन जाओगे। चलिए, तो मिसालें दी जाती है, भूली नहीं जाती। अच्छा डायलॉग था आमिर खान का, ठीक है। सो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो इसमें ऐसा है, ये तो पूरा डिजिटल रहा, है ना, दिस इज नथिंग बट डिजिटल। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो आप, दिखने में ही इतना छोटा है, 20 आवर्स बहुत है, तो काफी अच्छे से शालीन सर कर रहे हैं, नो इशू। डिजिटल पूरा कंप्लीट कर लो उनके साथ में, है ना। इसके लिए आप साथ में प्रैक्टिस भी कर लो, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन कर लो, तीनों ब्रांच के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, इंस्ट्रूमेंटेशन के, और जो लेक्चर क्लास में चल रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। साथ में अगर इच्छा है तो साल्वी वानन बुक आती है, उसके अनसॉल्व कर लो, वो मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा, वो वही तो मैं दूंगा आपको, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट इज ये, इसके लिए तो भगवान किताब है बॉयल्सटेड, जिसको हम भी रेफर करते हैं, ठीक है। और इसको बस अच्छे, अब देखो कितनी मोटी किताब है वो, उसको अगर आप सोचो कि आप खुद पढ़ने जाओ तो आप 2 महीने में अकेले किताब वो नहीं कर सकते, उसका क्रिस्प आपको कितने टाइम में मिल जाएगा, 40 आवर्स में, ओके। दिस इज द एडवांटेज, आई मस्ट से, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द एनी क्लास और एनी दिस वन, एनी टीचर, है ना। सो दिस इज ओके, दिस ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक, बट मोस्टली क्लिपिंग, क्लैंपिंग और बाइसिंग ऑफ बीजेटी। अब बीजेटी बाइसिंग क्या है, केवल केसीएल और केवीएल तो है, ऑपएम क्या है, केसीएल और केवीएल तो है। सो जब आप ऑपएम करो इलेक्ट्रिकल के लिए, व्हाई नॉट यू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर दी आईएन आल्सो, आईएन के ऑपएम के क्वेश्चन टफ आते हैं, तो आप वो भी कर लोगे, तो हियर आल्सो यू विल स्ट्रॉन्ग,
ओके, सो आपको इस तरीके देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको वो सब तो करना ही है, ठीक है, वो मेरा काम है उसको मैनेज करना कि आपको कौन से क्वेश्चन देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मैं किया एमटेक पावर सिस्टम में हूँ, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में था, इन्वर्टर में। ओके, सो बेस्ट टॉपिक आई मस्ट से, इससे अच्छा सब्जेक्ट मुझे अब कोई नहीं लगता, इतना फंडामेंटल, इतना अच्छा, ये आप डिवाइसेस देखोगे ना तो उसका फील ही अलग है, इसका गेट सर्किट बनाने का फील ही अलग है, एक्सट्रीमली गुड टॉपिक, और यही फ्यूचर है। इसके साथ में क्लब हो रहा है कंप्यूटर साइंस में, जो इसकी जो भी इसके अंदर इनोवेशन आ रहे हैं, जो भी आप घर में देखोगे, आपके पंखे का स्विच भी आजकल ट्राई बेस्ड हो गया है ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फ्यूचर, सो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट आई कैन से, और बहुत ही वी कैन से बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है, इसको बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। आई टोल्ड यू पावर फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ एसी और डीसी कन्वर्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर कहां से निकलेगा, फोरियर सीरीज से, फोरियर सीरीज सॉल्व कर ली तो डिस्टॉर्शन फैक्टर निकल गया, हार्मोनिक फैक्टर निकल गया। सिंगल फेज एंड थ्री फेज वोल्टेज करंट सोर्स इन्वर्टर, यस इन्वर्टर कर दिया तो इन्वर्टर का आपको फोरियर एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अच्छा टॉपिक है, साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ओके दैट वी विल आल्सो सी। देन थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल, अब देखो आप डायोड बेस्ड कर लो, पहले मैं आपको थायरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर पढ़ाऊंगा अल्फा 0 लेके, तो वो डायोड का हो जाएगा, उसमें अल्फा को दे दूंगा तो आपका थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज एंड कम्यूटेट बेस्ड थायरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर, यस वोल्टेज कम्यूटेशन, एंड ये कम्यूटेशन जो है ना वो पीएस भीमरा में इतना ब्यूटीफुल दिया है, इतना प्यारा दिया है, बस समझने में टाइम लगता है डेफिनेटली, उसको मैं समझाऊंगा तो वो 10 घंटे में होगा, आप खुद पढ़ने जाओगे तो हो सकता है 40 घंटे भी लग जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम तो इसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे में कर देंगे, लेकिन आप खुद से पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि 20 घंटे लग जाए और समझ में ना आए, बीच में छोड़ दो। सेम वे जब चॉपर करते हैं तो चॉपर का क्लास 1 क्लास 2 क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी करते हैं ना, तो वो भी बहुत ही अच्छे दे के रखा है बुक्स में, कोई सी बुक में गलत भी है, ऐसा आप बुक को पूरा सही नहीं मानते, भीमरा में जो डुअल कन्वर्टर है उसका डेरिवेशन गलत दे के रखा, तो उस आपको ये जानना भी जरूरी है ना, बुक पे भरोसे भी नहीं कर सकते, कई बुक में तो गलत दे के रखा है, तो उसके लिए रशीद में वो सही दे के रखा है। सो एक बुक से पढ़ने जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती करोगे, 2-3 बुक 4 बुक से करना पड़ेगा तो ये अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। यस यस, ये पावर तकलीफ तो बहुत देता है, बट लेकिन जो समझ गया उसको इतना अच्छा लगता है। अब देखिए इसके बीजी फर्नांडिस के एनपीटीईएल के लेक्चर भी बहुत प्यारे, लेकिन आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, गारंटी है मेरी, इस टाइम पे आप मेरी बात सुन रहे हो, रात को 12:30 बज रही है, हम बोल रहे हैं सुन रहे हो, वो पढ़ने बैठ जाओ आधे घंटे इसके बाद में, जो बढ़िया नींद आएगी, यू कैन नॉट से, है ना। सो ही इज डेफिनेटली, नॉलेज तो बहुत है लेकिन आपको भी समझना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, सो गेट एग्जामिनेशन कंसिस्ट ओनली ऑफ मल्टीपल एंड डेफिनेटली, अब तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए हैं, ए एंड बी लिखा हुआ नहीं रहेगा ऑप्शन डी में, बोथ ए एंड बी, ए भी सिलेक्ट करो बी भी सिलेक्ट करो, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर ए सिलेक्ट कर दिया बी सिलेक्ट नहीं करा तो भी आपने एक सही है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, उसका अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो बता दिया है हमने, जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की, और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, करेक्ट आंसर पे करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स, और नेगेटिव पे -1/3 नेगेटिव, है ना, तो 2 के लिए -2/3 नेगेटिव। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन डेफिनेटली पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो करना ही है, जो वीक टॉपिक है उसको एनालाइज करो, उसको फिर से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली छोड़ नहीं सकते उसको। कैंडिडेट्स मस्ट ट्राई टू सॉल्व पेपर्स इन गिवन टेस्ट सीरीज, अभी तो ले रहे हैं 20 मिनट में, आपको मैंने क्वेश्चन दिया ना 10, अभी ट्रांजिट 2 का टेस्ट रेडी है, वो भी दोगे तभी तो हम, और वो टफ टेस्ट ही है, और वो मान लो आप वो ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना। ओके, इम्पार्ट एम्फेसिस ऑन, यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली, थ्योरी पढ़ेंगे तभी न्यूमेरिकल आएंगे, है ना, दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। गेट सिलेबस को पूरा अपने हाथ से लिख के रखो, वेट टेस्ट आपको मैंने वो जो स्लाइड दिखाई थी ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो सेकंड उस पे था ना, वही मैंने भी इंटरनेट से लिया था, सो बनाया नहीं था तो अवेलेबल है, लेकिन
अपने इस पे स्क्रीनशॉट लेके करना। यस, ग्रुप स्टडी करते ही हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, तो और साथ में करते जाओ, टेक्निकल टॉपिक पढ़ते जाओ, जो साथ के दोस्त है उनसे डिस्कस करते जाओ, उनकी मेथड पे ध्यान दो। नचिकेत को सॉल्व कर रहा है तो उसकी मेथड से भी देखो, अली ने को सॉल्व किया तो उस मेथड से भी देखो, गार्गी ने को सॉल्व किया तो उससे उस मेथड से भी देखो। यस, डू नॉट मेक वाइल्ड गेसेस, एग्जाम में तुक्के मत मारो है ना, ये तो पता ही होना चाहिए लेकिन लोग मान लेते हैं, तो उससे थोड़ा नुकसान तो बहुत होता है। यस, बताइए आपको मैक्सिमम पावर एग्जांपल देके डेफिनेशन लिखो, उसकी इक्वेशन लिखो, उसका डेरिवेशन लिखो, 2 पेज में कंप्लीट करो, स्टेपल करो, अलग रख दो, अलग टॉपिक लो, नेट सारी थ्योरम एक साथ हो गई, सारे स्टेडी स्टेट एनालिसिस एक साथ में हो गया, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सारी वेवफॉर्म्स, पावर फैक्टर, लीड नेटवर्क, लेग नेटवर्क, सबको एक पंच करो, अलग रखो। सो यस, साथ में लिखते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ। ओके, अपनी अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल तो क्या बनाओ, 15 मिनट ही मिलना, पढ़ लो, और जब पढ़ो तब मोबाइल को दूर फेंक दो, है ना, और अगर मोबाइल में वीडियो देख के कर रहे हो तो फिर उसको डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन कर लो, और इंटरनेट बंद कर दो। एक व्हाट्सएप आता है, पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो आपको। तो जब 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे व्हाट्सएप मत देखो, ये प्रिंट करो, या तो उसको एयरप्लेन मोड पे करके डाउनलोड करके करो, तो ही वो समझ पाओगे, नहीं तो एक बार व्हाट्सएप आया तो फिर वो बस क्या बोलूं, क्या इच्छा होती है, बार बार देखने की आदत ही पड़ जाता है। जब पढ़ो 2 घंटे के लिए उसको साइलेंट कर दो, व्हाट्सएप दूर कर दो। स्टडी 2 और टेलीग्राम तो आजकल नया आ गया है, वो भी और नया नया है। स्टडी 2-3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ये तो पूरे स्लाइड्स में यही बताया मैंने कि हम कैसे पढ़ते हैं। यस, डिवाइड, यस, सब टॉपिक में ही बात करी हमने। यस, ये भी क्लियर है, एक टॉपिक करो, क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद में सारे टॉपिक को क्लब करके फिर एक साथ में उसकी टेस्ट दो। यस, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिखते जाओ। यस, ओके, हाउ टू प्रिपेयर। यस, अभी हम बात कर रहे हैं गेट 21 की, कितने टाइम है, 6 मंथ से, मतलब 180 डेज, लास्ट के 1.5 महीने, 1.5 मंथ फुल लेंथ टेस्ट के लिए रखो एंड रिवीजन के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड तो अभी हमारा हो ही जाएगा, ये तो अभी हो जाएगा, थोड़े दिन में सब लगभग सब हो गया है, प्रोबेबिलिटी भी वी आर एट द एंड। अप्रोक्सीमेट 20 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, 20 डेज 4 आवर पर डे, 80 आवर्स ईच सब्जेक्ट, मजाक है क्या, 40 घंटे में कर देता हूँ, आप 40 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो पूरा। आप मशीन को मान लो 60 घंटे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ो तो सही है ना, तो 20 डेज तो बहुत हो गया, 10 डेज भी बहुत है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर घंटे पढ़ा दो, 8 घंटे पढ़ लो तो भी हो जाएगा, इजंट इट। अगर इतना कुछ मिल रहा है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। यस, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 151 में हम केवल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, उसके पहले अभी टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, फिर फुल लेंथ चलेंगे, है ना, जो यस मैंने भी ये फेस किया है। टेस्ट सीरीज में, टेस्ट में जो पेपर था, सारे 65 क्वेश्चंस टेस्ट के बाद में, चाहे आपको 20 नंबर आ रहे हैं, चाहे 30 नंबर आ रहे हैं, चाहे 100 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आए तो आपने सही, सब सही करें। अगर 85 भी आ रहे हैं तो 15 मार्क्स की जो नहीं बने ना, उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वही एग्जाम में काम आता है। ओके, मतलब जो टॉपिक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज करो, फिर से टेस्ट दो, है ना, वो सारे क्वेश्चन को फिर से अपनी एक अलग नोटबुक बनाओ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो तो मैं टेस्ट में आपको डाल ही दूंगा, क्लास में करते भी हैं। सो मैं तो चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन पेपर के सारे कंसेप्ट पे एक अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कॉन्सेप्ट, 2 पे ये कॉन्सेप्ट था, लिखते जाओ साथ में, और लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते रहो, एक ने वो दिया, दूसरे ने वो दिया, एक बार में 5 टॉपिक मैंने 5 लोगों को डिवाइड कर दिए, उन 5 नोट्स बनाए, ग्रुप पे डाल दिए, सबका क्लब हो गया, इस तरीके से टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। 70 डेज में आप पूरे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, 70 डेज में मात्र सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 20 साल के, 30 साल के, और 10 नंबर टेस्ट दे दो। दिस इज द शॉर्टकट टू क्लियर द गेट, है ना, लेकिन इससे आप मत सोचो कि आप 1 ले आओगे, ये केवल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 50+ मार्क्स ला सकते हो केवल इतना करके। बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं ना कि गेट क्लियर हो जाए कम से कम, तो स्टाइपेंड मिल जाए, तो 50+ मार्क्स लाने के लिए ये बहुत है। कुछ मत करो, केवल ये कर लो, यू विल गेट 50+ मार्क्स डेफिनेटली, एंड यूज योर माइंड ऑल्सो। यस, टॉपिक वाइज टेस्ट वी आर ऑन इट,
सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे टॉपिक वाइज कंप्लीट होते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज वी विल टेक। जब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तब फुल लेंथ टेस्ट देंगे। जब 2 सब्जेक्ट होंगे तो 2 सब्जेक्ट को क्लब करके देंगे। ये तो हमारे टेस्ट सीरीज का है कि अपन स्कोर देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सॉल्यूशन रहता है, तो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म बेटर कर सकते हैं। यस, ये फीचर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट गेट सॉल्यूशन एकेडमी। यू नो all the faculties and you are aware of us, so very good team of faculty, all are good. Shri sir is good, me is there, Abhilash sir is there, Shalin is there, so all are compatible, all are competent and है ना, हर कोई गेट निकाल के काफी अच्छा इसको लेके अच्छी अच्छी पोजीशन पे ही है ना। ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रॉम IIT। स्टडी मटेरियल तो आपको ऐप पे हम देते जा रहे हैं, जो अभी तो लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज सब आपके पास बुक सही लेक्चर्स वेल शेड्यूल्ड एज पर सिलेबस। और सिलेबस क्या, हम तो बोलते हैं टॉपिक के साथ करते हैं, एक एक टॉपिक को हम करते हैं, है ना। ज्यादा लंबे लेक्चर भी नहीं लेते हैं और अपने पास टाइम भी बहुत रहता है कि हम प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं 10 घंटे लेक्चर ले रहे हैं और बता पड़ रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, यस, सो दिस इज आवर ऐप, यू ऑल हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी। गूगल प्ले स्टोर पे लिखो गेट सॉल्यूशन एकेडमी, देन गेट सॉल्यूशन एकेडमी डाउनलोड करके उसमें स्टोर में देखो, स्टोर में जाके आपका जो भी स्ट्रीम है और कौन सा टॉपिक है वो देख के, और ये रहा कंटेंट, सम इज पेबल and some is free also, content is also available. Okay, so these are the rankers. I hope यहाँ पर भी कोई आ जाए बहुत जल्दी इसके ऊपर, जल्दी से जल्दी, है ना। so all are at good position, you can see all are working, all are in ये IIIT ये PGCIL में डिप्टी डायरेक्टर, so all are at very good deputy manager, I don't know what is the post now, but he's at very high post, so he's also studying in IIIT this time. Okay, so many more are there, but I kept in one slide only, so hope I will see your face in this very soon. As you know, we are always reachable. अभी रात का 1:30 बज रहा है, you can contact me anytime on this number, you can visit our website, you can mail us, ऐप तो है ही सही। ओके, व्हाट्सएप पे तो पूरा टाइम अवेलेबल रहता ही हूँ, सो फॉर एनी डाउट एनीथिंग यू कैन कांटेक्ट मी, लेकिन गेट 21 को यू कैन डू। ओके, स्वामी विवेकानंद का है ना स्टेटमेंट, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस लगे रहो, 6 महीने हैं, कौन आपको रोक सकता है, इजीली यू कैन अचीव। लेकिन नहीं, बस रेगुलर करते रहो, डेली 4 घंटे 5 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो आप लोग बोलते हैं कॉलेज चल रहा है, ये प्रेशर है वो प्रेशर, कुछ नहीं होता है। पूरा लॉकडाउन चल रहा है, पूरे टाइम घर पे हो, बाहर भी नहीं जाना है, 6 महीने कुछ मत करो पूरी तरीके से। घर का काम केवल क्या है, मोबाइल दूर रख दो, लेकिन मोबाइल दूर रख दो, और मोबाइल चला रहे हो तो अपना ऐप ही चलाओ, और व्हाट्सअप मत देखो उस टाइम पे। 2 घंटे बाद देखो व्हाट्सअप मत देखो, मना नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सअप मत देखो, व्हाट्सअप देखो 2 घंटे बाद देखो। जब 2 घंटे फोकस स्टडी 2 घंटे, फिर आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे। जब 2 घंटे पढ़ो ना, तब ऐसा होना चाहिए कुंभकर्ण जैसा, कि ढोल धमाके से उठाए तो भी ना उठे। आप पढ़ रहे हो तो घर पे अगर टीवी चल रही फुल आवाज में, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये कंसंट्रेशन जिस दिन मिल गया, देन कौन, यू कैन, नोबडी कैन स्टॉप यू, इजंट इट। चलिए, so with this we will end our session. You can contact me anytime on this. Okay, चलिए।